It was pre-planned. It has been established by investigation, and charge sheet has also been submitted. It was a pre-planned before a few days. Few people has collected petrol, kerosene. A few groups has come in auto rickshaw to collect kerosene and petrol. There was announcing from loudspeaker to mobilize the masses. So it has been established beyond doubt that it was a pre-planned. Of course, planned may have been done by few people, but total local population has supported. This is also reality. It is only a tall claim. In fact, a year after the event, there is still no conclusive evidence how coach S6 of the Sabermati Express caught fire at Godhra in Gujarat on the 27th of February 2002. 59 passengers died in that fire. Over 3,500 Muslims were killed in the riots that followed. The Godhra incident was not only used successfully in this riot, but in the December Assembly elections too. भगवान राम के जन्म स्थान के यज्ञ के कार्यक्रम में शांति से सम्मिलित होते हुए आते लोगों पर ऐसे हमला और जलाने का काम किया है। हजारों साल पहले जैसे हमारे ऊपर हमले होते थे, ऐसे ही हमले करके हमको ऐसे जो किया है, तो वो तो उसको तो हम भूल नहीं सकते हैं। तो हमने सबको समझाया कि इस गुजरात में हमें शांति से रहना है, हमारा गांव गोधरा नहीं बने ऐसा देखना है, तो हमें इस बार भारी मतदान करना चाहिए और हमारी संगठित ताकत का पर्चा सबको दिखाना चाहिए। और जो विश्व हमारे सामने आज है, और ऐसा कह रहे थे हिंदू समाज को दोषित कह रहा है, लेकिन हम दोषित नहीं है, जो है ऐसे इस्लामिक आतंकवादी लोग हैं दोषित। तो ऐसे लोगों को हम पूरी तरह से परास्त करने का काम करें, ऐसा हमने पूरा माहौल गुजरात में बनाया। उसकी असर बनी है। हमने कहा था गोधरा से गांधीनगर तक, हमने गांधीनगर सर कर लिया है। गांधीनगर से हम दिल्ली तक जाएंगे और फिर इस्लामाबाद तक जाएंगे। Marginalized in Indian politics in the 1980s by a resurgence of backward castes, the BJP turned to religious mobilization to regain its political ground. The Ram Janambhoomi movement was born. Lal Krishna Advani, then party president, began a Rath Yatra from Somnath in Gujarat, mobilizing Hindus to wipe out the shame of Muslim conquest, represented by the Barbaric mosque in Ayodhya. So religious polarization based on hate and perceived threat began. Ram temple is not a question of temple. It is a civilization value. One Indian civilization which we have evolved after so many millenniums, which is pluralistic, tolerant, inclusive, compassionate, always coexisted. We have 1,000+ religion within Hindu society, 16 languages, 623 dialects, and we are facing a grave threat against this civilization by a civilization which has destroyed a Ram temple. So it is not a question of a construction of a Ram temple. It is a question of a prevailing value system which builds Ram temple, World Trade Center, and civilization which want to destroy it. The peak of this movement came on the 6th of December 1992, when the mosque fell to the Karsevaks. Later, BJP captured power at the centre in the late 90s with the promise of building a Ram temple at Ayodhya. The promise is still unfulfilled. The hype created by the destruction is dying, and so is the movement. The Sun is desperate because the death of this movement means defeat to their larger agenda of dominating the world.
केवल राम जन्मभूमि नहीं, काशी का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा की कृष्ण की जन्मभूमि, ये तीनों उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अलग बात है कि मक्का जो है, मदीना, वो भी हमारा स्थान है। शंकल द्वीप, कुरान में इसका उल्लेख है, वो भी हमारा है। जंग जारी है, बहुत पुरानी जंग चल रही है। जंग का अंत एक ही होगा, न ईसा न मूसा। केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, तो उसका जो वैदिक सनातन धर्म है वही इस देश के अंदर स्थापित होगा। देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर स्थापित होगा। लड़ाई तो वहां तक जाने वाली है। ये सब इसके पंथ हो जाएंगे हिंदू समाज के। समय की प्रतीक्षा करो। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। Elections were expected in Gujarat in 2002. The need to raise the emotions was immediate. Sangh Parivar started reviving the Ram Temple movement. The Karsevaks were mobilized once again, now in the name of Purna Ahuti Yagna at Ayodhya. Batches of Karsevaks started moving to Ayodhya from different parts of the country. On the 22nd of February, the first batch of Karsevaks from Gujarat also started their journey. अहमदाबाद से अयोध्या 22 तारीख को निकला था। यहाँ से 22 तारीख को साबरमती ट्रेन में निकला था और 24 तारीख सुबह अयोध्या पहुँचे हम लोग, और 25 तारीख शाम को वहाँ से निकले साबरमती ट्रेन में, और 27 तारीख को गोधरा पे आया। हम लोग यहाँ से अयोध्या जाने का महत्व वही था कि राम मंदिर का निर्माण के लिए जाने का था। उसके पहले यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहे थे, पहले तो यहाँ पे बजरंग दल की भर्ती किया गया, फिर बाद में राम नाम जप का कार्यक्रम किया गया, फिर शिव पूजा का कार्यक्रम किया। हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में शिव पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। शिव पूजा का कार्यक्रम होने के बाद राम नाम जप का 33 करोड़ मंत्र जप का, राम नाम जप का कार्यक्रम चालू हुआ। वो कार्यक्रम चालू करने के बाद जो मंत्रोच्चार पूरा होते हैं 33 करोड़, तो उसके बाद यज्ञ होता है। तो हर एक प्रखंड में यज्ञ किया गया, और वो यज्ञ के बाद अयोध्या में बड़ा यज्ञ रखा था। उसमें वो यज्ञों में हमको आहुति देने के लिए जाना पड़ा। तो हम लोग यहाँ से अहमदाबाद से, गुजरात में से सब कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे। Organization of the Purna Ahuti Yagya was basically in an effort to revive the Ayodhya temple movement. The speeches that were made there, the songs that were played on loudspeakers were things that have been heard for the last 11 years in Ayodhya. I mean, they exhort people to, build a temple at Ayodhya. They exhort people to throw Muslims out of India. And these are par for the course for anyone who's actually seen the VHP or the Bajrang Dal in action. A large number of the so-called Karsevaks were just tourists, people who got a free trip and were, in Ayodhya because someone else was paying for it. But this doesn't mean that the people who travelled to Ayodhya conducted themselves in a seemly fashion en route or on their way back. And I think that's where the problem began. A lot of these people are out of work young men who've been part of the Bajrang Dal set up for a very long time. In fact, the majority of young men over there with their saffron patkas were Bajrang Dal sort of street level activists. There's nothing else, you can say about them. They were probably unemployed. And the sort of people who play up before a camera and the sort of people who get into fights very easily. It is this characteristic of theirs that had always created problems in the past. This time also, when the first batch of Karsevaks from Gujarat reached Rudauli station, just short of Ayodhya, they were at their most violent. 24 तारीख को जब यहाँ काउंटिंग हो रही थी वोटों की, तब वो एक कारसेवक आए दरियाबाद से लेकर के और रुदौली गौरिया मऊ स्टेशन तक के लोगों, यात्रा करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। उन्हें मारा, उन्हें त्रिशूल भोंके, औरतों को के साथ बेईमानी की। बिल्कुल गलत बात है, कुछ हुआ ही नहीं हुआ है।
हम लोग अयोध्या पहुँचे और मतलब ये सब गलत बात है कि भाई मुस्लिम समाज की कोई छोकरी को ये सब छेड़ती किया था, ये सब पेपर में आ रहा है, ये सब राम नाम का नारा सब लगा रहे थे और रेलवे स्टेशन के अंदर भी कोई तकलीफ नहीं थी और ये सब गड़बड़ गलत बात है। दिल्ली में तो ऐसी कोई मतलब कोई हमारा ऐसा कोई पर्सनली कोई नहीं हुआ था, कहीं किसी का कोई पैसेंजर के साथ किसी का कोई झगड़ा हुआ हो तो हमें कोई ऐसा ही नहीं है ना। They denied it, of course, but the Muslim residents of Rudauli, a township having no communal past, had a different story to tell. Without any major provocation or big clash, the Karsevaks started violence at Rudauli station. Their main target was bearded Muslim men and burqa-clad women. Children were also not spared. जब हम स्टेशन पहुंचे तो साबरमती और हम साथ में पहुंचे, तो साबरमती जब खड़ी हुई तो हम मतलब दौड़ के गए, टिकट लिया और आए जब चढ़ने के लिए तो लोगों ने वहां मारपीट शुरू कर दिया। उस दिन ऐसा था, हम सवारी आने गए थे कि सवारी लिया है, तो उसने जो है कार सेवक वालों ने पकड़ के कहता चलो मेरे साथ गाड़ी पे अयोध्या। तो हमने कहा भाई जी हम कहाँ जाएंगे, आप अपना रिक्शा चलाएंगे कि वहाँ जाएंगे अयोध्या। जबरदस्ती खींच के ले जाते, उतने में हमें यहाँ बड़े बाबू स्टेशन मास्टर इन्होंने हमको पकड़ के अंदर घसीट ले गया। तो जो टिकट उकट लिया, गाड़ी जब आई तो वो गाड़ी जो है मतलब हम एकदम निकल गए आगे उस तरफ पूरा एकदम। तो वहाँ देखते चले आए, कोई डिब्बा हमको खाली नज़र नहीं आया। पीछे एकदम बोगी खाली हुई, एकदम खाली थी, आम पब्लिक जिसे आम लोग बैठते हैं उसी में हम भी चढ़ गए। उसमें वो लोग नहीं थे कार सेवक वाले। फिर वहाँ गाड़ी क्रॉसिंग हो गई तो काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी देर के बाद गाड़ी क्रॉसिंग थी। उसके बाद वो लोग सब उतरे हुए थे वहाँ पर स्टेशन पे और खूब नारे लगा रहे थे और माँ बजा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। उसके बाद उनका नज़र उस डिब्बे पर पड़ा, पूरे डिब्बे के ऊपर। तो उसमें से दो आदमी चढ़ के गए इधर से और उस तरफ उतर गए। वो जाकर तमाम आदमी को बुला लाए उधर, बस डिब्बा घेर लिया चारों तरफ से। बस वो उसमें पहले तो औरतन के ऊपर हमला किया, यानी औरतें जो नकाब पहने हुई थी, बैठी हुई थी, उनका कपड़ा वपड़ा फाड़ डाला, सब मारने लगे और हम मतलब वही घेरे में आ गए। उसके बाद में फिर हम सोचा कि अब इसमें से भागो किसी तरफ। जैसे एक कदम बढ़ाया वो मारा फैड हमको, यही जगह पड़ा था। बस हम उसी में लड़खड़ा गए, वो उठा के फेंक दिया बाहर। जब बाहर फेंक दिया तो बहुत आदमी थे, तेल लात घूसा बहुत मारा। उठा के टांग पकड़े, उठा के इसे पटक दें। कहाँ बोलो, कहो जय श्री राम, और जय श्री राम कहते रहे बराबर, लेकिन छोड़ा नहीं, बहुत मारा। उसके बाद में फिर एक बार हम मतलब थोड़ा उठे, जैसे भागने की कोशिश किया, एक सामने से करौली मारा, लेकिन हमारे नहीं पड़ा, मतलब हमें भूसट के अंदर ऐसे घुस गया करौली, और भूसट में वो करौली फंस गई और मेरा भूसट एकदम निकल गया। हाँ, जिस्म पर से भूसट निकल गया। फिर जो हम आगे बढ़े, एक सामने से फैड मार दिया, फिर हम गिर गए वही जगह बेहोश। बहुत मारा, लात घूसा बहुत मारे, इसी तरह से मारते थे कि एकदम ऐसे कूद के इसी सीने के ऊपर बहुत बुरी तरह मारा, लात घूसा, जैसे पाए कोई उछल के कूदते थे हमारे ऊपर।